when I use this word loudness, you can simply say, ma'am, loudness means you're talking about the intensity of a sound. कोई चीज कितनी तेज या कितनी तेजी से हमारे तक हम तक आ रही है, that उसका intensity क्या है, उसका strength क्या है, that gives you the loudness of a sound. Okay, now आगे जाके you will prove that the intensity of any wave, the intensity of a wave which is represented by I is directly proportional to intensity is strength. जितनी ज्यादा strength होगी, जितनी ज्यादा intensity होगी, उतनी ज्यादा loudness होगी, of course. So somewhere this intensity and loudness are connected with each other. Okay, we'll see what is the relation between intensity and loudness afterwards, but let's have the relation between the intensity and the amplitude. For example, if you are, let's take an example, एक आपने ड्रम लिया और उसको काफी तेजी से उसको बीट किया, आपको वो वॉइस उतनी ही तेजी से आप तक आएगी. मतलब होगा क्या कि आप जितना ज्यादा इंटेंस साउंड प्रोड्यूस करोगे, उसका एम्पलीट्यूड उतना हाई होता है. जितना ज्यादा उसकी इंटेंसिटी हाई होती है, उसका एम्पलीट्यूड भी उतना ही हाई होता है. And there is a relation between intensity and the amplitude, and that relation says that your intensity of sound is directly proportional to amplitude ka square. You don't have proof now. We will prove it in your next year, that is we will prove it in 12th standard. I think 12th में भी बहुत बड़ा proof नहीं है इसका. Just you have to understand that intensity is directly proportional to amplitude का square. आपकी जो intensity होती है वो experimentally find out की गई है कि आपका sound का जो intensity होता है, जो strength होता है, it is directly proportional to amplitude का square होता है. Next for जो सबसे minimum intensity आप सुन सकते हो, the minimum intensity that you can hear is 10⁻⁻12 watt per meter square. आपका इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है, इट इज वाट पर मीटर स्क्वायर. बाय सीइंग द यूनिट, कैन यू डिफाइन व्हाट इज इंटेंसिटी? यूनिट देखकर आप डिफाइन कर सकते हो इंटेंसिटी क्या है. आफ्टर सीइंग द यूनिट, आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ा हुआ है ना? The power in per meter square. So यूनिट देखकर आप ये बोल सकते हो कि इंटेंसिटी इज, और कोई अच्छे से समझा सकता है मुझे? Power intensity is unit length. कितना? Power per meter square. Intensity is power per meter square. Yes. Power per area. Power per unit area. Unit length. Unit ये area. टर्म बहुत और अच्छे तरीके से कोई समझा सकता है मुझे, और बेटर वे में कोई समझा सकता है? Power is energy. Yeah, somewhere you are connecting. Per unit area. Power is energy per unit area or energy per unit time. Per square unit. Again, what is power? How you define power? How you define power? मेरे हिसाब से power is energy per unit time. Yes. गलत बोल रही हूँ क्या? Yes. Yes, it is correct. Energy. So if I connect the proper, if I want to have a proper definition of intensity, I can say intensity is the amount of energy received, the amount of energy received per unit time per unit area. एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया से एक यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी मैं रिसीव कर रही हूँ, दैट गिव्स मी द इंटेंसिटी. अगर उस यूनिट टाइम में और उस यूनिट एरिया से अगर मैं बहुत ज्यादा एनर्जी रिसीव कर रही हूँ, इसका मतलब है कि उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई है. कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्या बोला मैंने? कुछ समझा व्हाट आई सेड? Yes. Yes. है ना? So intensity can be defined as energy per unit time per unit area. एक यूनिट टाइम में और एक यूनिट एरिया से मैं कितनी एनर्जी रिसीव कर रही हूँ, दैट गिव्स मी द इंटेंसिटी. अगर उस यूनिट टाइम में और उस यूनिट एरिया से मैं बहुत ज्यादा एनर्जी रिसीव कर रही हूँ, इसका मतलब यह है कि उसकी इंटेंसिटी, उसका स्ट्रेंथ बहुत हाई है. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग? कुछ समझ में आ रहा है व्हाट इज इंटेंसिटी? है ना? Yes. Yes. एंड ऑफ कोर्स देन एनर्जी पर यूनिट टाइम इज योर पावर, इसलिए यूनिट आपको वाट पर मीटर स्क्वायर आया है. दिस गिव्स यू वाट एंड दिस इज एरिया. सो वाट पर मीटर स्क्वायर का आपका यूनिट आया हुआ है पावर, सॉरी इंटेंसिटी का. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग? क्लियर विद द पार्ट? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये कांसेप्ट समझा सबको? Yes. Yes. Okay. Now let's move ahead.
योर इंटेंसिटी, आपकी जो इंटेंसिटी होती है वो एक और यूनिट में मेजर की जाती है. सॉरी, आपका जो लाउडनेस, इंटेंसिटी इज वाट पर मीटर स्क्वायर. आपका जो लाउडनेस होता है, loudness of a sound is measured in bell. The unit of loudness is bell. Okay, मैम इसका नाम बेल क्यों पड़ा? These are some factors वो उन्होंने रखा है. So loudness को mostly bell में measure किया जाता है, and the relation between the loudness and the intensity is given by, again you don't have a proof, directly they have given you the equation and I am only going ahead with the equation. That is the reason. Loudness in bell is given by log to the base 10 I by I naught. This is the relation between intensity and loudness of a sound. Loudness of a bell, loudness in bell is equals to log to the base 10 I by I naught, where I is the intensity which is reaching you and I naught is the intensity. It is the minimum intensity which your ear can hear. And आपको पता है what is the minimum intensity? अभी मैंने आपको बताया. What is the value of minimum intensity? It is 10 raised to minus 12 watt per meter square. Okay, so this is the relation between loudness and intensity. Loudness in bell is given by log to the base 10. It is following a logarithmic function. मैंने आपको बताया था जब मैं आपको साइन और कॉस के बारे में बता रही थी, मैंने आपको बताया था कि इस वर्ल्ड में हर चीज का ग्राफ बनाया जाता है और उस ग्राफ को देखकर डिसाइड किया जाता है कि वो कौन से फंक्शन को फॉलो कर रहा है. तो जब ये रिलेशन निकाला गया तो इट वाज फाउंड दैट कि लाउडनेस और इंटेंसिटी के बीच में लॉगरिथमिक फंक्शन देखने के लिए मिल रहा है. देयर इज एन लॉगरिथमिक फंक्शन जो इनका ग्राफ फॉलो कर रहा था. सो दैट इज व्हाई लाउडनेस इन बेल इज इक्वल्स टू log to the base 10 I by I naught. Next is I naught is the minimum intensity which you can hear and I is the intensity which is falling on your ear. आपके कान पे जो पड़ रही है. Okay. Now there is another unit in which your loudness is measured, that is decibel. Decibel भी एक यूनिट है जिसमें आपका लाउडनेस को मेजर किया जाता है. वन इज बेल, बेल बड़ा यूनिट होता है, डेसीबेल छोटा यूनिट होता है. नाउ डेसीबेल होता क्या है? ऑफ कोर्स यू नो दैट डेसी का मतलब होता है डेसीमीटर. डेसीमीटर मीन्स 0.1 मीटर. वैसे ही one bell, if you want to convert the bell into decibel, what you have to simply go for multiply and divide by 10. आपको डेसी लाना है. ये डेसी का मतलब होता है 0.1. So you have to multiply and divide by 10. Bell. So if you want to convert one bell into decibel, this 1 by 10 is 0.1. So 10 into 0.1 of bell, and this 0.1 will be converted to deci. So 1 bell is equals to 10 decibel. ये relation समझा सबको? Yes. So 1 bell is equals to 10 decibel. समझा? आपको बेल को डेसिबल में कन्वर्ट करना है. यू हैव टू कन्वर्ट दिस बेल इनटू डेसिबल. डेसी का मतलब होता है वो जो भी है उसके आगे 0.1 आ जाए. अब 0.1 लाने के लिए आई एम डूइंग मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 10. 1 by 10 is your 0.1. This 0.1 becomes deci. बेल वैसे का वैसे कंटिन्यू हुआ. So 1 bell is equals to ये जो 10 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, 1 bell is equals to 10 times of decibel. Hope you are clear with the things. समझा? Yes. Let's try to have the relation between loudness in bell and loudness in decibel. Loudness in bell और loudness in decibel निकालते हैं. उसके बाद कुछ चीजें regarding sounds के टर्म में जरा इसको समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है. What does that mean? और ये logarithmic function क्या, किस तरीके से हमको पता चला इसके ग्राफ को देखकर कि it is following a logarithmic function. For example, साइन ग्राफ था तो हमको पता चल गया भाई 0 पे 0 आ रहा है, 90 पे मैक्सिमम आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इट इज फॉलोइंग साइन वेव, साइन फंक्शन को फॉलो कर रहा है. तो ऐसे ही ये लॉगरिथमिक फंक्शन बहुत बड़ी चीज बताता है, बहुत बड़ा कुछ काम करता है, जिसकी वजह से ये फाइंड आउट किया गया कि ओके ये जो लाउडनेस है ये इस हिसाब से बढ़ रहा है, सो मतलब ये कहीं ना कहीं लॉगरिथमिक फंक्शन को फॉलो कर रहा है. सो फर्स्ट लेट्स हैव अ रिलेशन बिटवीन लाउडनेस इन बेल एंड लाउडनेस इन डेसिबल. नाउ लाउडनेस इन बेल was given by log to the base 10 I by I naught.
So whatever value you will get the answer in bell. Now what I want to know कि अगर मुझे डेसिबल में कन्वर्ट करना है, इफ आई वांट लाउडनेस इन डेसिबल, मेरे पास मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 करूंगी. अगर वो 1/10 जो है वो 0.11 के ऊपर जाएगा और वही 0.1 डेसिबल में कन्वर्ट होगा. So let's multiply and divide by 10. Okay. Now this 1/10 इसको जरा यहाँ ले लेते हैं. 10 log to the base 10 I by I naught. 1/10 is 0.1 into bell. 1/10 का मतलब होता है 0.1. और आपको पता है 0.1 is what? What is 0.1? Deci. 10 log to the base 10 I by I naught decibel. Decibel. ओके मतलब ये आपका जो लाउडनेस आया है, ये जो लाउडनेस आया है ये डेसिबल में आया है. दिस इज लाउडनेस इन डेसिबल. दिस होल पार्ट इज लाउडनेस इन डेसिबल. सो दिस इज लाउडनेस इन डेसिबल. ये आपका डेसिबल में कन्वर्ट हो गया. अब मुझे पता है ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये हमारा क्या था? व्हाट वाज दिस पार्ट? What was this part? Log to the base 10 I by I naught bell. Bell. This is loudness. This part is loudness in bell. This part is Yes. loudness in bell. Yes. Yes. Correct. So Yes. loudness in decibel is 10 times. ये 10 extra बचा है, and this is loudness in bell. 10 times loudness in bell. Because this part is giving you loudness in bell. So loudness in decibel, LDB, is 10 times loudness in bell. Clear with the part? Samjha? Yes. Loudness in decibel is 10 times. This is loudness in bell. So it is 10 times loudness in bell. क्लियर हुआ? समझा सबको यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes. Okay. So this was about loudness in decibel and loudness in bell. Okay. Now आप लोगों को ये हो गया है, लॉगरिथम हो गया है. Yes, No, ma'am. ma'am. Yes. Yes. लॉगरिथम चैप्टर आपको पढ़ाया है. Yes. लॉग आपको ढूंढने सिखाया मैम है. चैप्टर नहीं. Ma'am, chapter नहीं सिर्फ. चैप्टर नहीं, आपको बेसिक सिखाया है लॉग का. Yes, ma'am. Basic हाँ. सिखाएं. हाँ बस Yes. बेसिक से चाहिए, बेसिक से चाहिए. Product rule वगैरह. बेसिक से चाहिए. ओके मैं एक बार फिर से ये रिलेशन वापस डिफाइन कर रही हूँ. हम वापस से सारी चीजें रिवाइज कर रहे हैं एंड देन हम कुछ सीखेंगे लाउडनेस के बारे में, व्हिच विल बी द लास्ट पार्ट फॉर लाउडनेस. आफ्टर दैट वी विल गो अहेड विद द डॉपलर इफेक्ट. ओके नाउ अगेन आई एम रिवाइजिंग द थिंग्स. Loudness is related to intensity. Before understanding loudness, we need to understand what is intensity. What we found that intensity is directly proportional to amplitude का square. This is the relation between intensity and amplitude. आपको पता होना चाहिए what is amplitude. It is the maximum displacement of particle from its mean position. Okay. Now, the minimum intensity that your ear can hear is 10 raised to minus 12 watt per meter square. Then I asked you कि by seeing the unit can you define me intensity? Some of you said ma'am intensity is according to unit, intensity is power per unit area. I said let's define it in more detail. I said power is energy per unit time. So if I substitute it over here, what I'm getting, intensity is power per unit area, power is energy per unit time. So I can simply say that intensity can be defined as the amount of energy received per unit time per unit area. अगर ज्यादा एनर्जी रिसीव हो रही है per unit time per unit area, means intensity ज्यादा है. Simple सा फंडा है. Next, what is said? Loudness is measured. Loudness of a sound is measured in a unit known as bell. Now loudness in bell is log to the base 10 I by I naught, where I is the intensity which is coming to your ear, and I naught is the intensity, minimum intensity, which your ear is sensible, जो सुन सकता है आपका गान. So I naught is 10 raised to minus 12 watt per meter square. Then I explained you what is decibel. So I explained you what is decimeter. Decimeter is 0.1 meter. So if I want to convert bell into decibel,
I need to multiply and divide by 10. This 1 by 10 becomes 0.1. So 0.1 into bell will be decibel. So 1 bell is equals to 10 times of decibel. This is what is the relation we got between bell and decibel. Next, we try to find out the loudness in decibel. The relation between loudness in bell and loudness in decibel. Loudness in bell is given by log to the base 10 I by I naught into bell. अब इस bell को मुझे decibel में convert करना है तो multiply and divide by 10 करना पड़ेगा. ये वाला जो divide by 10 है वो 0.1 बनकर यहाँ पर आ जाएगा and this unit will become decibel. So we'll have the relation as loudness in decibel. ये जो अब आया है ये loudness in decibel है हमारा. So loudness in decibel is equals to 10 times of log to the base 10 I by I naught. 0.1 डेसी बन गया एंड बेल वैसे का वैसे कंटिन्यू हुआ. नेक्स्ट वर्ड है सेट कि ये वाला पार्ट अगर तुम ध्यान से देखो log to the base 10 I by I naught, अगर इसको ध्यान से देखो तो ये है क्या? log to the base 10 I by I naught is actually loudness in bell. So we got the relation as loudness in decibel times loudness in bell. आपका loudness in decibel जो होता है वो 10 times होता है loudness in bell में. So this is what is the relation we got, that loudness in dB is 10 times loudness in bell. Clear with the part? समझा? Yes, ma'am. Yes. Yes. Okay. Let's move ahead. Let's say आपके कान तक जो इंटेंसिटी आ रही है that is equals to I naught. वो उतनी है जितना आपका कान सेंसिबल है, जितना जो मिनिमम इंटेंसिटी है. What will be the loudness? Let's try to find out. Loudness in decibel is 10 times log to the base 10 I by I naught. Correct है? Yes. मेरा I किसके बराबर है? I naught के बराबर है. I naught. So I naught by I naught. Correct? Yes. 10 times of log to the base 10 of 1. What is log to the base 10 of 1? 1 का log क्या होता है? Natural log of 1. Zero. Zero. Of course, the loudness will be zero. Loudness zero ही हो गई ना? जब वो minimum intensity पे है तो loudness हुआ क्या कुछ भी? Is there any loudness? आप बोलोगे वो sound loud है? No. So loudness is zero. Okay, let's move ahead. Let's say, अब जरा कुछ समझा रही हूँ, जरा ध्यान से सुनना. Let's say loudness is 10 decibel. आपका loudness जो है वो 10 decibel है. Okay, let's substitute it here. Loudness in decibel is 10 times log to the base 10 I by I naught. जरा देखते हैं इंटेंसिटी और लाउडनेस में क्या रिलेशन आ रहा है. लाउडनेस इन डेसिबल कितना बोल रहा है वो? 10 डेसिबल बोल रहा है. 10 decibel. ये मैंने 10 खुद से लिया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए. 10 log to the base 10 I by I naught. 10 got cancelled, so 1 is equals to log to the base 10 I by I naught. Now taking antilog on both the sides. 1 का antilog क्या आएगा? Miss antilog नहीं पढ़ा. लॉग नहीं पढ़ा है. मैम वो नहीं पढ़ा है. लॉग अच्छा, और ठीक है. एंटीलॉग का वैल्यू नहीं पढ़ा. ओके लिसन. ठीक है, फाइन. एंटीलॉग नहीं पढ़ाया है, सो कोई बात नहीं. अगर आप इसको इन्वर्ट करते हो, आपको यहाँ पर आंसर 10 आएगा एंड 10 इज इक्वल्स टू I by I naught. दिस इज द रिलेशन व्हिच यू विल गेट. ओके, नाउ जस्ट जरा ध्यान देना. अब मैं ये I naught यहाँ भेज देती हूँ. 10 I naught इज इक्वल्स टू I. ये आपको एक रिलेशन मिला कि आपकी जो इंटेंसिटी है, अगर आपका लाउडनेस 10 डेसिबल है तो आपकी जो इंटेंसिटी होगी वो 10 टाइम्स होगी आपकी मिनिमम इंटेंसिटी से. अगर आपका लाउडनेस 10 डेसिबल आ रहा है, इसका मतलब आपकी जो इंटेंसिटी है साउंड की वो आपके मिनिमम इंटेंसिटी जो आपका कान सुन सकता है उससे 10 टाइम्स है. ये रिलेशन मुझे मिल रहा है. इफ योर लाउडनेस इज 10 डेसिबल. कुछ समझ रहे हैं मैंने क्या कहा? कुछ समझा व्हाट आई सेड? Yes, ma'am. Yes. एक बार समझाना वापस. फिर से समझा रही हूँ, ध्यान से देखो. मैंने कहा लेट्स टेक एन एग्जांपल. लाउडनेस इज 10 डेसिबल. ये मैंने खुद से नंबर लिया है. ये क्यों लिया है ऐसा मत बोलो, सिर्फ समझाने के लिए ले रही हूँ. कुछ रिलेशन समझाना है मुझे आपको लाउडनेस और इंटेंसिटी के बीच में. मैंने क्या कहा कि लाउडनेस मैंने कितना लिया है? 10 डेसिबल लिया है. अब मैं क्या कर रही हूँ, वो 10 डेसिबल, और मुझे पता है लाउडनेस इन डेसिबल का फॉर्मूला मुझे पता है. 10 log to the base 10 I by I naught. Now let's substitute this over here. Loudness is 10 decibel is equal to 10 log to the base 10 I by I naught. 10 got cancelled. You got 1 is equals to log to the base 10 I by I naught. अब log को यहाँ भेजोगे
और इस आई बाय आई नॉट को अलग करोगे, एंटीलॉग टर्म में जाओगे तो आपको 1 का जो पार्ट है, 1 का जो अपोजिट पार्ट होता है, एंटीलॉग होता है, यू विल गेट द आंसर एज 10. नाउ 10 इज इक्वल्स टू आई बाय आई नॉट. नेक्स्ट व्हाट, ये आई नॉट मैंने यहाँ भेज दिया. तो ये बता रहा है कि अगर आपका किसी साउंड का लाउडनेस 10 डेसिबल है, अगर आपके किसी साउंड का लाउडनेस 10 डेसिबल है, इसका मतलब ये है कि उसकी उस साउंड की जो इंटेंसिटी है, उस साउंड का जो स्ट्रेंथ है, वो आपके मिनिमम जो आपका कान सुन सकता है उससे 10 टाइम्स ज्यादा है. इट इज 10 टाइम्स ऑफ द मिनिमम इंटेंसिटी which your ear can hear. That is the intensity which is falling on your ear. आपके कान पे वो इंटेंसिटी पड़ रही है जो आपके कान के सुनने की जो सबसे मिनिमम इंटेंसिटी है उससे 10 टाइम्स ज्यादा है. कुछ समझ रहा है मैंने क्या कहा? Are you understanding what I said? Yes. Yeah. Yes. So हेलो ये मिस. कब हो रहा है? Yes. मिस वो 10 टाइम्स मतलब हम ज्यादा सुन सकते हैं अगर 10 डेसिबल होगा तो. 10 टाइम्स आप ज्यादा सुन रहे, ऐसा नहीं है. आपके कान पे जो इंटेंसिटी पड़ रही है, ये इंटेंसिटी, ये जो आई है, ये आपके कान पे गिरने वाली इंटेंसिटी है. ये आई नॉट, ये आपके कान की मिनिमम इंटेंसिटी है जो आपका कान सुन सकता है. तो अगर आप बोल रहे हो कि लाउडनेस 10 डेसिबल है, अगर आपने बोला कि किसी ने आपको बोला कि अच्छा इसकी लाउडनेस 10 डेसिबल है, तो आप सीधा उसको एक बात बोल सकते हो कि अगर इसकी लाउडनेस 10 डेसिबल है, इसका मतलब मेरे कान की जो मिनिमम इंटेंसिटी है उस पे उसका 10 टाइम्स इंटेंसिटी मेरे कान पे गिर रहा है. मेरे कान की मिनिमम इंटेंसिटी, किसी के भी कान की मिनिमम इंटेंसिटी 10⁻12 को सेंसिबल होती है. 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर तक आपका कान सुन सकता है. इतनी इंटेंसिटी आपके कान को सेंसिबल है. तो आपके कान पे अगर कोई बोल रहा है कि जो साउंड आपके कान पे गिर रहा है वो 10 डेसिबल का है, तो आप सिंपली उसको एक बात बोल सकते हो कि इसका मतलब यह है कि मेरे कान पे उतनी अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी गिर रही है जो कि 10 टाइम्स ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी से 10 टाइम्स ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी है. समझ में आया व्हाट आई सेड? समझा? यस मिस. यस. आर यू क्लियर एवरीवन? यहाँ तक समझा कि अगर Yes, 10 ma'am. डेसिबल बोल Maximum रहे हैं तो density है. Yes. ये रिलेशन क्या समझा रहा है आपको? समझा कि आपके Yes. कान पे कितनी अमाउंट ऑफ Yes. इंटेंसिटी गिर रही है, which is 10 times of your minimum intensity which your ear is sensible. मीन्स और which your मैक्सिमम ear is डेंसिटी, sensitive. Yes. मैक्सिमम इंटेंसिटी है मीन्स कौन सा? I is equals to 10 I Which one naught. is maximum? No, it is not maximum intensity. मैंने कहा it is maximum. No, it is the amount of I is the amount of intensity which is falling on your ear, and I naught is the minimum intensity which your ear is sensitive. So अभी अगर someone is saying what I'm explaining, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? कि अगर किसी ने बोला ये जो लाउडनेस बज रहा है वो 10 डेसिबल का है, तो इसका रिलेशन ये बताता है कि आपके कान पे 10 टाइम्स ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी गिर रही है. Yes, समझा. जो इंटेंसिटी आपके कान पर गिर रही है, इट इज 10 टाइम्स ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी. समझा? I is the intensity which is Yes. falling on your ear, and I naught is the minimum intensity. So I is equals to 10 times of I naught का मतलब है कि आपके कान पर जो गिरने वाली इंटेंसिटी है वो मिनिमम इंटेंसिटी से 10 गुना ज्यादा है. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. लेट्स मूव अहेड. ओके, जरा आप क्या करते हैं, लाउडनेस को बढ़ाते हैं 2 टाइम्स से. पहले हमने लाउडनेस 10 लिया था, अब जरा लाउडनेस 20 लेते हैं. लेट्स टेक द लाउडनेस 20 डेसिबल. सब्स्टिट्यूट करते हैं. When you substitute it, you'll get 20 is equals to 10 log to the base 10. बहुत अच्छा लॉगरिथमिक फंक्शन का बहुत अच्छा रिलेशन आपको दिखने वाला है अब आगे, कि इसको लॉग बोलने के बदले मैं जो बोल रही हूँ कि ये साउंड का जो ग्राफ है, ये लाउडनेस और इंटेंसिटी का रिलेशन का जो ग्राफ है वो लॉगरिथमिक फंक्शन फॉलो करता है. ये हमको कैसे पता चला, ये रिलेशन बताएगा अब आपको. 10 to the 20, 2 is equals to log to the base 10 I by I naught. When you take anti-log now, होता क्या है, ये 10 के पावर्स में बढ़ता है. Earlier it was 10 raised to 1. जब 1 था यहाँ पे, you got 10 raised to 1. 10 raised to 1 is 10. यहाँ पर 2 है तो it is 10 raised to 2. Sorry.
10⁻² का मतलब क्या होता है? 100. 100. 100. 100. अब जरा ध्यान से देखो, लाउडनेस सिर्फ कितने से बढ़ाई थी आपने? लाउडनेस सिर्फ 2 कितने से times बढ़ाई से। थी आपने? Time. Twice. 2 times. जो Times से। इंटेंसिटी, जो एनर्जी आपको मिल रही, जो एनर्जी आप है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, वो कितने से बढ़ी? कितने से बढ़ी? 100. पहले कितनी 100 थी? times. जब लाउडनेस 10 डेसिबल था। नो, जब लाउडनेस 10 डेसिबल था, जब लाउडनेस 10 डेसिबल था, आई और आई नॉट के बीच में क्या रिलेशन आया था? Times. 10 times. 10 times 10 times I naught. Times. 10 When times. loudness in decibel was 10 decibel, 10 decibel. I और I नॉट के बीच में जो एनर्जी आपके कान पर गिर रही थी, it was 10 times of I नॉट। बट जैसे ही मैंने लाउडनेस को सिर्फ दुगना किया, मैंने लाउडनेस की वैल्यू दुगनी कर दी, जो आपके कान पे गिरने वाली एनर्जी है वो देखो कितने से बढ़ गई। अर्लियर इट वाज 10, नाउ इट इज 100। 10 कितने times बार से मल्टीप्लाई हुआ है? 10 times. 10 times. 10 टाइम से बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि जब आप लाउडनेस 10, सिर्फ आप लाउडनेस को दुगना कर रहे हो, जो आपके कान पर गिरने वाली इंटेंसिटी है वो 10 बार से बढ़ जाती है। इट इंक्रीजेस बाय 10 टाइम्स। जहां पर लाउडनेस वाज 10 डेसिबल, द एनर्जी पर यूनिट एरिया जो आपके कान पे गिर रही थी, इट वाज 10 टाइम्स ऑफ आई नॉट। बट आपने जैसे ही लाउडनेस को दुगना किया, जो इंटेंसिटी आपके कान पर गिरने लगी, इट वाज 100 टाइम्स ऑफ आई नॉट। सो दिस इज व्हाट द लॉगरिथमिक एक्सप्लेन्स कि ये मैंने कहा कि ये इट फॉलोज अ लॉगरिथमिक फंक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर आप हल्का सा भी लाउडनेस बढ़ाते हो तो आपके कान पे जो एनर्जी गिरती है, जो इंटेंसिटी गिरती है, वो हर बार 2 टाइम से बढ़ा रहे हो, 3 टाइम से बढ़ा रहे हो, वो हर बार 10 टाइम्स के पावर से बढ़ती जाती है। इट ऑलवेज इंक्रीजेस। आप बोलते ना मैंने लाउडनेस दुगनी कर दी, लाउडनेस दुगनी कर दी, इसका मतलब आपने इंटेंसिटी को 10 टाइम से बढ़ा दिया है। अर्लियर जब 10 डेसिबल लाउडनेस था, आपके पास 10, आपके कान पे 10 गुना गिर रहा था। जब आपने उसको 20 डेसिबल किया, आपके कान पे 100 गुना ज्यादा गिरने लगा। सो दिस इज व्हाट एक्सप्लेन्स कि लाउडनेस अगर 2 टाइम से बढ़ रहा है तो इंटेंसिटी जो आपके कान पे गिर रही है वो 100 टाइम से बढ़ती है। दिस इज व्हाट द लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सप्लेन्स यू। लॉगरिथमिक फंक्शन इसीलिए आया है, लॉगरिथमिक फंक्शन इसी तरीके से बढ़ता है कि व्हेन लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सप्लेन्स यू कि जब आप कोई चीज छोटी सी चेंज कर रहे हो, वो बहुत बड़ा चेंज दूसरी जगह पर दिखा रही है। देयर इज अ वास्ट चेंज एट द डिफरेंट पॉइंट। कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? समझा? Yes. है ना? अब जरा मुझे बताओ, इफ आई टेक लाउडनेस एज 30 डेसिबल, बताओ सर मेरी इंटेंसिटी 1000. कितने से बढ़ जाएगी? 1000. 10 से बढ़ जाएगी। 1000 से बढ़ 10 times. 1000 टाइम्स से आपकी इंटेंसिटी विल बी द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी जो आपके कान पर गिर रही है, इट विल बी 1000 टाइम्स ऑफ द मिनिमम इंटेंसिटी। Minimum intensity. मतलब हर बार देख रहे हो 10 के पावर से बढ़ता जा रहा है। Yes. Yes. And that's a- Yes. आपको ऐसा देख के लग रहा है कि मिस, ये तो नॉर्मल सी बात है, पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इतना हार्ड पावर आपके कान पर गिरना मतलब बड़ी बात है। That's a big number. इसकी जो वैल्यू बढ़ रही है बहुत बड़े नंबर से बढ़ती जा रही है। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? Yes. अच्छा, आपको ये समझा I is equals to 10 times of I naught का मतलब क्या है, या I is equals to 100 times of I naught का मतलब क्या है, या I is equals to 1000 times of I naught का मतलब क्या है? कोई मुझे समझा सकता है ये इसका मीनिंग क्या है? ये मैंने काफी बार रिपीट किया, फिर भी कोई मुझे समझाएगा स्टूडेंट्स में से कि Minimum. इसका मतलब क्या है? I is equals to 10 times of I naught। मैम मिनिमम इंटेंसिटी से 10 टाइम ज्यादा Intensity इंटेंसिटी कान की जो मिनिमम 10 टाइम से बढ़ती है। 10 times ज्यादा होता 10 है. टाइम। वॉइस सुने यस, तो जो इसका मतलब ये है कि आपके कान पे जो इंटेंसिटी गिर रही है वो इंटेंसिटी आपके मिनिमम इंटेंसिटी से 10 टाइम्स ज्यादा है। दिस गिव्स यू द रिलेशन। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज Yes, द ma'am. रिलेशन बिटवीन Yes. लाउडनेस एंड Yes. डेसिबल। Yes. लाउडनेस को आप 2 से लाउडनेस को आप 2 से बढ़ाओ, इंटेंसिटी आपको 100 से बढ़ती हुई मिलेगी। लाउडनेस को आप 3 से बढ़ाओ, अर्लियर इज लाउडनेस इज 30, तो आपकी इंटेंसिटी 10 के पावर से 1000 में बढ़ जाएगी। इस तरीके से रिलेशन डिस्क्राइब करता है, और दिस इज व्हाट एक्सप्लेन्स दैट इट इज फॉलोइंग अ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन इसी तरीके से वेरी करता है कि अगर आपने हल्का सा चेंज किया वो काफी बड़ा चेंज करके आपको दिखाएगा। दूसरे पार्ट में यू विल फाइंड अ वेरी बिग चेंज। दिस इज हाउ लॉगरिथमिक फंक्शन वर्क्स। ओके,
इसीलिए जब आप सुनते हो किसी चीज को, अगर आपने बोला कि समझो आप गाना बजा रहे हो, गाना बजाते वक्त आपने बोला कि पहले कुछ आप सुन रहे थे, अचानक से गाने की आवाज तेज हो गई, आपने बोला कि अरे यार इसका लाउडनेस अब ना मुझे दुगना फील हो रहा है। मतलब अगर लाउडनेस अगर उसका दुगना फील हो रहा है, मतलब उसकी इंटेंसिटी 10 टाइम से बढ़ी हुई है, उसकी इंटेंसिटी 10 टाइम से बढ़ी हुई है, तभी आपको लाउडनेस दुगना फील होगा। मतलब इंटेंसिटी को आपको 10 टाइम से सीधा 100 टाइम पे चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आपको लाउडनेस का फील होगा कि अच्छा हुई है। समझ रहे हो? समझा मैंने क्या किया? लास्ट स्टेटमेंट समझा मैं क्या बोली? म्यूजिक सुनते समय व्हेन यू से कि लाउडनेस बढ़ गई है, दुगनी हो गई है, इसका मतलब ये है कि अंदर जो इंटेंसिटी क्रिएट हुई है वो पहले से 10 गुना ज्यादा क्रिएट हुई है। पहले वो 10 टाइम्स ऑफ आई नॉट थी, अब वो 100 टाइम्स ऑफ आई नॉट है। इसका मतलब ये है कि इट इज 10 into 10 टाइम्स ऑफ आई नॉट, पहले वाले से 10 गुना ज्यादा बढ़ी है। तो आपको फील दुगनी होती है पर अंदर इंटेंसिटी 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी होती है। तो समझ रहा है? Yes. समझा मैंने क्या कहा? Yes, ma'am. मतलब हर बार जब आप गाना बजाते हो और जब आप उसका वॉइस, उसका लाउडनेस बढ़ाते हो, तो आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि लाउडनेस भले मेरे कान तक दुगनी पहुंच रही है, पर अंदर जो काम हो रहा है वो हर बार 10 गुना से बढ़ता जा रहा है। अगर लाउडनेस 3 गुना बढ़ा है, मतलब कहीं ना कहीं काम 100 टाइम्स ज्यादा हो चुका है पहले वाले कंडीशन से। समझ में आ रहा है व्हाट आई सेड? इंटेंसिटी आपकी 100 टाइम्स ज्यादा बढ़ चुकी है पहले वाले कंडीशन से। होप यू क्लियर? So loudness increases by 2, so intensity increases by 10, loudness increases by 3, that is then the intensity will be increased by 100 from the earlier condition. So this is how it goes. Hope you are clear? everyone? तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आपको वो बोल सकते हैं, लेकिन आज लाउडनेस मेरे को जो है वो 4 टाइम्स फील हो रही, so they can ask you what will relation between 10,000. 10,000. 10,000. So it will be 10,000. 10 10,000. raised to 4. 10⁻⁴. मतलब अगर आपको आवाज 4 गुना लग रही है, इसका मतलब इंटेंसिटी 10⁻⁴ के अमाउंट से बढ़ी हुई है अंदर, एंड दैट्स अ बिग नंबर। क्लियर एवरीवन? Yes. समझे सबको? Yes. ये लाउडनेस में को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े? Yes. 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 So let's move ahead with the Doppler effect. आपके टेक्स्ट बुक में डॉपलर इफेक्ट का प्रूफ दिया हुआ है, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट एज योर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू को ऑलमोस्ट डिलीट किया गया है, हटाया गया है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। बट आपको डॉपलर इफेक्ट पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं वो पता होना चाहिए। इसलिए हम डॉपलर इफेक्ट को काफी अच्छे से समझने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं, एंड दिस विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर योर साउंड चैप्टर। ओके, सो लेट्स मूव अहेड विद द डॉपलर इफेक्ट। इसको काफी अच्छे से समझना, जो ट्रिक्स बता रही हूँ उसको जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एंट्रेंस में आने वाला सबसे फेवरेट टॉपिक है। इस टॉपिक से एंट्रेंस में हमेशा इस टॉपिक से पक्का क्वेश्चन आते हैं, आना ही है। सो इसको जरा बहुत अच्छे से समझना कि ये है क्या, व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट। ओके, नाउ फर्स्ट I'll explain you what is Doppler effect. इसका मीनिंग क्या है? See, if a person is standing here, तो एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है और एक ट्रेन है जो हॉर्न बजाते हुए इस पर्सन के पास अराइव कर रही है। इट इज अराइविंग टू दिस पर्सन। ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ट्रेन ऑन अ ट्रैक, इट इज मूविंग टू द पर्सन, और वो एक हॉर्न मतलब हॉर्न बजा रही है, वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है। अब होगा क्या, आप अपने आप को एक्सपीरियंस करके बताओ कि उस साउंड से रिलेटेड आपको क्या फीलिंग आएगा जब 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 ट्रेन आपके पास आती जाएगी। व्हाट यू विल फील? साउंड बढ़ेगा। साउंड बढ़ेगा। बढ़ेगा। इंक्रीज होगा। ये आपने नॉर्मली लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। अब ट्रेन इसको पास कर कर दूर जा रही है, साउंड डिक्रीज इसको Sound Decrease. decrease. अब जरा समझो, ये जो आपको साउंड सुनाई दे रहा है, साउंड इज अ नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बोल सकते हैं, जो एयर पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं।
सो अगर मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बात करूं तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट सेकंड आप तक जो पहुंच रहा है। डॉपलर इफेक्ट का मतलब क्या होता है? डॉपलर पहले वेलोसिटी के आपको साउंड के आपको नंबर्स की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी। आपने बोला कि मैम जब ये मेरे पास आता है तो मुझे साउंड बढ़ता हुआ सुनाई देता है, जब ये मेरे से दूर जाता है तो मुझे साउंड कम होता हुआ सुनाई देता है। सच में ऐसा हो रहा है क्या? इसका कम या ज्यादा कुछ हो रहा है क्या साउंड? ऐसा होता है क्या सच में? No. ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। दिस इज अवर ऑब्जर्वेशन। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है कि भाई जब ये ट्रेन मेरे पास आने लगी तो मुझे जो साउंड की फ्रीक्वेंसी सुनाई दी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन सुनाई दिए, वो मुझे बढ़ते हुए सुनाई दिए। लेट्स से ओरिजिनली 20, जैसे जैसे ये मेरे पास आने लगा इसकी फ्रीक्वेंसी मुझे 25 हर्ट्ज सुनाई देने लगी, बढ़ती बढ़ती सुनाई दी। जब ये मेरे से दूर जाने लगा ये मुझे 15 हर्ट्ज सुनाई दी। सच में ऐसा हो रहा है क्या 25 और 15? No. सच में ऐसा है? No. ओरिजिनली वो क्रिएट तो इतना ही कर रहे हैं, Yes. but still there is a change in the frequency which I am observing, which I am hearing. Correct? Yes. So Doppler effect explains you about this. Doppler effect इसके बारे में explain करता है। Doppler effect का मतलब होता है it explains you the apparent change in frequency due to relative motion between source and the observer. This is your observer, this is your source. जब इन दोनों में से कोई भी चीज मूव कर रही होती है या दोनों चीज मूव कर रही होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी में इस मूवमेंट की वजह से जो चेंजेस इस पर्सन को सुनाई देती है या इस पर्सन को ऑब्जर्व होती है, उसी इफेक्ट को हम डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज डॉपलर इफेक्ट। जो हमको ये अपरेंट चेंज मतलब जो हम रियलाइज कर रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, द अपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, वेट फॉर व्हाइल, things are visible to you? Yes. 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 Yeah. So the apparent change in the frequency, the frequency which I am observing, the change in that particular frequency, the apparent change in the frequency due to motion of relative motion of either the source or the observer. या तो observer में चलता रहे या तो source चलता रहे या तो दोनों चलते रहे, दोनों के मोशन की वजह से जो मुझे चेंज सुनाई देता है फ्रीक्वेंसी में, that explains the Doppler effect. वो Doppler effect को explain करता है। समझ में आया Doppler effect क्या है? समझा मैंने क्या कहा? What is the Doppler effect? है या ना? Yes, yes. 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 जरा ध्यान से समझो इसका यूज कहाँ पे किया जाता है। फॉर एग्जांपल जब फाइटर प्लेन्स चलते हैं, डॉपलर इफेक्ट का यूज बहुत जगह पर होता है। आप समझो एक प्लेन है, एक फाइटर प्लेन है जो मेरे बॉर्डर से क्रॉस हो रही है, इट इज क्रॉसिंग फ्रॉम माय बॉर्डर। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मुझे कम होती हुई, मेरा जो मशीन है वो मशीन उसकी फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर रहा है कि वो दूर दूर जा रही है, फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है, तो मुझे पता चल जाएगा कि ओके ये फाइटर प्लेन क्रॉस करके मेरे से दूर जा रहा है। तो अगर फ्रीक्वेंसी कम डिटेक्ट हो रही है, मींस दैट पर्टिकुलर फाइटर प्लेन इज मूविंग अवे फ्रॉम मी। कुछ समझ में आ रहा है व्हाट इज से? Yes. कुछ समझा? मिस बोलो। मिस एक बार पूरा फिर से समझाना, मेरा नेटवर्क कनेक्शन गया था। ओह माय गॉड। ठीक है, व्हेन आई विल रिवाइज तब सुन लेना। ओके फाइन। सो कीप इट इन माइंड कि अगर समझो देयर आर डिफरेंट मशीन्स व्हिच डिटेक्ट दिस। अब एक फाइटर प्लेन, एज आई टेक एन एग्जांपल ऑफ अ फाइटर प्लेन, कि अगर वो फाइटर प्लेन मेरे से दूर जा रहा है तो उससे निकले हुए जो वेव्स है वो मेरी मशीन डिटेक्ट करेगी। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम कम होती जा रही है, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग, तो मुझे फील हो जाएगा कि ओके दैट फाइटर प्लेन इज सिंपली गोइंग अवे फ्रॉम मी। अभी वहीं पर अगर वही फ्रीक्वेंसी मेरी बढ़ती हुई गई तो देयर इज अ फाइटर प्लेन इज कमिंग टू मी। सो डॉपलर इफेक्ट का यूज फाइटर प्लेन्स दूर जा रही है या पास आ रही है उस चीज के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। दूसरा डॉपलर इफेक्ट का काम कहाँ पर किया जाता है? ऑफ कोर्स आपके जो स्पीड डिटेक्टर्स होते हैं, आपका जो ट्रैफिक पुलिस बोलता है कि नहीं नहीं आपकी स्पीड ज्यादा है, आपकी स्पीड कम है, एक लिमिट लगाया जाता है कि ओके इस पर्टिकुलर एरिया में आपको इतने ही स्पीड से चलना है। बट अगर आप उससे स्पीड क्रॉस करते हो तो आपको जो ट्रैफिक पुलिस है वो आपको फाइन चार्ज करती है कि नहीं आपका जो लिमिट स्पीड का था उससे आपने ज्यादा किया। तो वो उसको कैसे पता चलता है? बाय यूजिंग द मशीन। जब वो ज्यादा स्पीड से चल रहा होता है तो जो फ्रीक्वेंसी रिसीव होती है आपके मशीन से, वो आपको समझाती है डॉपलर इफेक्ट के हेल्प से कि अगर वो स्पीड ज्यादा है तो वो फ्रीक्वेंसी को राइज होता हुआ दिखाती है, एंड वो बताती है कि ओके जो लिमिट है स्पीड की वो उतनी नहीं है, उससे ज्यादा है, एंड देन दैट पर्सन फाइंड्स अ चार्ज ऑन यू। सो बाय यूजिंग दिस डॉपलर इफेक्ट वहां पर भी स्पीड डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है।
सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट डॉपलर इफेक्ट का कहाँ देखा गया है? इन योर एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स पता है क्या होता है? विच कौन सा ब्रांच है फिजिक्स का? सुना है तो होगा ही of Astronomical. course. Astronomical. Astronomical. It is related to universe, stars, planets and everything. yes, आपके यूनिवर्स का एक्सपांशन, कि आपका यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, आपको पता है ये बात? पता No. है? No. Yes. yes, Yes. अच्छा, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। आपका यूनिवर्स, इट इज ऑब्जर्व्ड बाय डॉपलर इफेक्ट कि आपका यूनिवर्स दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इट इज एक्सपांडिंग। ये बहुत बड़ा फिनोमिना है जो फिजिक्स में प्रूव हुआ है बाय यूजिंग दिस डॉपलर इफेक्ट। ये देखा गया है कि जो भी चीजें हैं इस यूनिवर्स में, जो स्टार्स हैं, जो प्लैनेट्स है अपनी जगह से, वो अपनी जगह से दूर दूर जा रहे हैं। मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो दिन ब दिन कम होती, घटती जा रही है। आपका एक Yes. मशीन आपने अर्थ पे रखा तो दिन ब दिन जब उसकी फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व किया जा रहा है तो इट इज डिक्रीजिंग। और इससे पता चल रहा है कि दिस ऑल एवरीथिंग, जो भी जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। आप में से ऐसा भी तो हो सकता है कि दे आर मूविंग अवे फ्रॉम अस। देन द थिंग इज कि जब उनके बीच का डिस्टेंस निकाला गया तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि चीजें एक दूसरे से दूर नहीं जा रही, उनके बीच का डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। तो फिर हो क्या रहा है? तो हो ये रहा है कि वो जो जिस भी चीज में सारी चीजें कलेक्टेड है, ये जो स्टार्स है, प्लैनेट्स है, ये सारी चीजें जिन भी चीज के अंदर है वो स्पेस ही अपने में बढ़ता जा रहा है। इट इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, वो बढ़ता जा रहा है। दिस इज व्हाट इज ऑब्जर्व। सो दिस इज द पार्ट व्हिच दे आर ऑब्जर्विंग कि दिन ब दिन जो है आपका जो यूनिवर्स है वो दिन ब दिन एक्सपांड हो रहा है। और उसको डिटेक्ट करने का काम डॉपलर इफेक्ट के हेल्प से किया गया है बाय डिटेक्टिंग द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स और स्टार्स की फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करके ये पता चला है कि डे बाय डे द फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग एंड दिस इज स्टार, वो कंटिन्यूअसली कहीं ना कहीं खिंचाव हो रहा है एंड इट इज एक्सपांडिंग, द यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग। दिस इज व्हाट इज बीन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड टिल नाउ। क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसका एक्सप्लेनेशन अभी तक किसी के पास नहीं है, बट हो रहा है व्हिच इज ऑब्जर्व बाय द डॉपलर इफेक्ट बाय दिस एक्सपेरिमेंट। कुछ समझा मैंने क्या कहा? कुछ समझ में आ रहा है? व्हाट आर द एप्लीकेशंस? Yes. पास आ रही है, दूर जा रही है, उसका डिटेक्शन डॉपलर इफेक्ट से किया जाता है। स्पीड लिमिट, आपका जो व्हीकल्स वगैरह का जो स्पीड लिमिट होता है वो स्पीड से ऊपर चला गया है, ये जो मशीन बनाते हैं, जो मशीन ये चीज बताती है वो डॉपलर इफेक्ट पे काम करती है। आपका यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, मतलब यूनिवर्स कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन भी डॉपलर इफेक्ट से किया गया है। क्योंकि जो भी फ्रीक्वेंसी प्लैनेट्स और स्टार्स से कलेक्ट की गई है वो डे बाय डे रिड्यूस होती हुई दिख रही है। इसका मतलब ये है कि थिंग्स आर स्ट्रेचिंग, चीजों में खिंचाव है। खिंचाव है मींस कहीं ना कहीं देयर इज एन एक्सपांशन इन द यूनिवर्स। सो this is what is observed in the, this is what is an experimental use of Doppler effect. Okay, now let's move ahead with the formula for the Doppler effect जो आपको useful है for solving the sums. So let's move ahead. Doppler effect समझा आपको क्या है? मिस रिवाइज करो Doppler ना। effect is change in apparent change in frequency. There is an apparent change in frequency due to relative motion, due to motion of आइदर सोर्स और ऑब्जर्वर। सोर्स या ऑब्जर्वर में से कोई भी अगर चीज चल रही है और चलने की वजह से जो भी चेंज, फ्रीक्वेंसी में चेंज हम लोग एनालाइज करते हैं, दैट इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड बाय द डॉपलर इफेक्ट। एग्जांपल मैंने आपको इसका दिया, पर्सन इज स्टैंडिंग, ट्रेन इज कमिंग टुवर्ड्स द पर्सन, वो एक हॉर्न बजा रही है। जब ट्रेन पास आती है हमको उसकी वॉइस बढ़ती हुई सुनाई देती है, जब वो हमसे दूर जाती है हमको उसकी फ्रीक्वेंसी, जो साउंड क्रिएट हो रहा है हॉर्न से, उसकी फ्रीक्वेंसी हमको कम सुनाई देती है। सो ये जो अपरेंट चेंज हो रहा है, सच में ऐसा कोई चेंजेस है नहीं, बट आई एम ऑब्जर्विंग दैट चेंज। तो ये जो अपरेंट चेंज हो रहा है मोशन की वजह से, मूवमेंट की वजह से, सच अपरेंट चेंज इज एक्सप्लेन्ड बाय द डॉपलर इफेक्ट। अगर वो ट्रेन रुकी हुई होती, वो पर्सन वहीं रुका हुआ होता, तो उसको फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस सुनाई नहीं देता। जो एक फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी आपको कंटिन्यूसली उसको सुनाई देती है, बट फ्रीक्वेंसी का बढ़ना कम होना, ये जो चेंज हो रहा है, अपरेंट चेंज हो रहा है, वो चेंज ड्यू टू द मोशन ऑफ एनी ऑफ द, ऐसा जरूरी नहीं है कि ट्रेन ही चल रही है, ट्रेन रुकी हुई है, मैं उससे दूर दूर जा रही हूँ, अगर मैं उससे दूर दूर जा रही हूँ तो भी मुझे फ्रीक्वेंसी कम होती हुई सुनाई देगी। अब ट्रेन कम फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रही है क्या, ऐसा कुछ है? हाँ या ना? ट्रेन कम फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रही है, ऐसा कुछ है? नहीं, बट आई एम मूविंग अवे फ्रॉम द ट्रेन, आई एम मूविंग अवे फ्रॉम द ट्रेन, और मेरे मोशन की वजह से मुझे फ्रीक्वेंसी में चेंजेस ऑब्जर्व हो रहा है। बोलो
मिस अगर हम भी चल रहे हैं और ट्रेन भी बोलो। चल रही है तो तो भी देयर इज एन डॉपलर इफेक्ट वही हो रहा है ना। होगा। रिलेटिव मोशन हो रहा है, सी कीप इट इन माइंड, रिलेटिव मोशन हो रहा है मतलब दोनों में से कोई भी एक चीज चल रही है या दोनों चल रहे हैं तो आपको डॉपलर इफेक्ट एक्सपीरियंस होगा, यू विल एक्सपीरियंस अ डॉपलर इफेक्ट। अब वो आगे हम फॉर्मूला पढ़ेंगे कि हाउ यू कैन कैलकुलेट, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। सेम डायरेक्शन है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है तो सेम डायरेक्शन है और वेलोसिटी, वो हम आगे पढ़ेंगे, विल गो अहेड विद दैट। मैं आपको फॉर्मूलाज में डाल के बताऊंगी, वो हम चीज करेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस लेंगे, यस विल टेक डिफरेंट कंडीशंस। मैम अभी समझा सबको व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? बोलो मैम बोलो, आई एम लिसनिंग, बोलो। टीवी में ऐसा देखा गया है कि मतलब जब हम लोग दूर बैठते हैं तो उसका वॉइस जो है कुछ ज्यादा ही सुनाई देता है, ऐसा क्यों? डॉपलर इफेक्ट तो फॉलो ऐसा नहीं। कुछ नहीं, सी वहां पे जब आप बैठे हो, टीवी भी अपनी जगह पे बैठा हुआ है, हाँ, तो वहां पे सोर्स इज योर टेलीविजन एंड यू आर द ऑब्जर्वर, नन ऑफ देम आर मूविंग, कोई भी दोनों में से मूव नहीं हो रहा है। डॉपलर इफेक्ट होने के लिए मैंने पहले ही बोला, डॉपलर इफेक्ट इज ड्यू टू द रिलेटिव मोशन, कोई भी एक चीज मूव होनी चाहिए, जब कोई भी एक भी चीज मूव हो रही है तो वहां पर डॉपलर इफेक्ट इज नॉट द रीजन। डॉपलर इफेक्ट इज ऑल बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ एन सोर्स और ऑब्जर्वर और बोथ, सोर्स की चलने की वजह से या ऑब्जर्वर की चलने की वजह से या दोनों के चलने की वजह से, इनकी वजह से, ये मूवमेंट की वजह से डॉपलर इफेक्ट होता है। रियलिटी में कोई चेंजेस नहीं है उसके अंदर, बट हमारे मोशन की वजह से हमको चेंजेस एक्सपीरियंस हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको ट्रेन का एग्जांपल लिया, ट्रेन का ऐसा नहीं है कि ट्रेन अलग अलग फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रही है, बट वो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जब ट्रेन हमारे पास आती है हमको ज्यादा सुनाई देता है, जब ट्रेन हमसे दूर जाने लगती है हमको कम सुनाई देता है, तो ये ट्रेन के मोशन की वजह से हो रहा है। सच में ट्रेन फ्रीक्वेंसी चेंज कर रही है ऐसा नहीं है, समझ में आ रहा है वैसे? समझा? यस। So that is because of the motion. Doppler effect is because of the motion, relative motion between the object. इसका एप्लीकेशन भी आएगा? नहीं, एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ पर होता है, कहाँ यूज किया जाता है, क्यों ये JEE और नीट पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। हर बार इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आते हैं इन एंट्रेंस में इसका क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स्ड है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो मैम, जो रेडियो वेव होते हैं फिक्स्ड रेडार गन में, और वो जो मूविंग व्हीकल होते हैं तो वो भी डॉपलर इफेक्ट ही है। यस, रेडार में भी डॉपलर इफेक्ट का यूज किया जाता है, करते हैं, करेक्ट है, किया जाता है। कोई चीज पास सी कीप इट इन माइंड, कोई चीज पास आ रही है दूर जा रही है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको डॉपलर इफेक्ट बहुत अच्छे से दे सकता है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से। इवन आपको मैं एक और आई डोंट नो आप लोगों को पता है या नहीं पता है, या हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोफिजिक्स, and my part is from astrophysics only. There is a galaxy called as Andromeda galaxy, which is coming to the galaxy in which we are living is Milky Way galaxy. हम Milky Way में रहते हैं. There is a galaxy known as Andromeda galaxy. ये Andromeda galaxy continuously Milky Way galaxy की तरफ आ रही है. It is coming to the Milky Way galaxy. और इसका मैंने अभी आपको बोला, यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग, चीजें एक दूसरे से दूर हो रही हैं, फ्रीक्वेंसी कम होती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ ये एक ऐसी गैलेक्सी है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और इसकी फ्रीक्वेंसी के बढ़ने का रीजन ही यही है कि ये जो गैलेक्सी है ये कंटिन्यूसली मिल्की वे गैलेक्सी से टकराने, कोलाइड होने के लिए हमारी तरफ बढ़ रही है। ऑफ कोर्स कोलिशन इतना जल्दी नहीं होगा, और कोलिशन होने से मिल्की वे को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट दिस इज द गैलेक्सी विच इज कमिंग टुवर्ड्स द मिल्की वे, जिसमें हम रहते हैं। हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इसके कोलिशन से, बट स्टिल दिस गैलेक्सी इज कमिंग टुवर्ड्स अस, और इसका एक्सप्लेनेशन भी डॉपलर इफेक्ट ने दिया है। क्यों? क्योंकि जो भी लाइट उससे हमारी गैलेक्सी पे जो भी लाइट वो एंड्रोमेडा से गिर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, मींस इट इज कमिंग टुवर्ड्स अस। सो दिस इज अगेन अ फैक्ट फॉर यू इफ यू वांट टू टेक इट। ओके, कर सकते हो। यस, स्टॉर्म्स का डायरेक्शन क्या है, इट इज कमिंग टू द सिटी और इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द सिटी, उसका भी फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन के हेल्प से ही पता किया जाता है। सो डॉपलर इफेक्ट इज यूजफुल देयर आल्सो, इट इज यूजफुल देयर आल्सो। ओके, सो डॉपलर इफेक्ट समझा आपको? यस Yes. ठीक है, फॉर्मूला हम कल करेंगे, आज नहीं करेंगे क्योंकि आज नहीं हो पाएगा।
सो अभी तक मैंने जितना पढ़ा दिया है वहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। फॉर्मूलाज कल डिस्कस करेंगे। होमवर्क, देयर इज एन होमवर्क फॉर यू, प्लीज लिसन। होमवर्क ये है कि डॉपलर इफेक्ट के सम्स छोड़ के, जो भी सम्स डॉपलर इफेक्ट के हैं उनको छोड़कर बाकी के जितने भी सम्स हैं आपके एक्सरसाइज के पीछे के, वो आपको सॉल्व करके आना है। यू हैव टू सॉल्व इट। उसमें जो भी डाउट होगा